So our next topic is the desktop. The desktop is the entire area between the top and bottom panels. A background picture is displayed on it. Any other items the user puts on the desktop will be placed in front of the background, obscuring that much portion of the background. Initially, the desktop is empty, but the user may place frequently used files, directories as well as applications launchers on the desktop for quick access. In reality, all the items the user places on the desktop are actually stored in the subdirectory named desktop in the user's home directory. Right-clicking on any empty area of the desktop brings up a context menu that allows us to create folders, files and application launchers on the desktop. The process of creating an application launcher is same as the one for creating custom launchers in the top panel described above. Alternatively, we may drag and drop files and folders from the Nautilus file browser onto the desktop or applications launcher from the application menu or the top panel onto the desktop. The context menu also has an option to change the desktop background pictures. Whenever we insert a removable device, an icon for the same is displayed on the desktop. We may open it by double clicking on it. When we right click on the icon, we get a context menu item to unmount the device, safety, remove the device, eject the media depending on the type of the device. तो desktop क्या है? So the desktop is the entire area between the top and bottom पैनल. डेस्कटॉप टॉप और बॉटम पैनल के बीच का जो पूरा एरिया है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं और इस पर बैकग्राउंड पिक्चर भी डिस्प्ले किया जाता है. यूज़र द्वारा डेस्कटॉप पर रखी गई कोई भी आइटम बैकग्राउंड के सामने उतना पोर्शन कवर करती हुई आपको शो होती है. और रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में कि डेस्कटॉप क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है. परंतु जो यूज़र्स बारी बारी से यूज किए गए फाइल्स, एप्लीकेशंस, डायरेक्टरीज, इन पर जल्दी पहुंचने के लिए वो उनके आइकन्स क्या करते हैं, डेस्कटॉप पर रखते हैं. और हकीकत में उपयोगकर्ता द्वारा डेस्कटॉप पर रखी जाने वाली सभी आइटम्स यूज़र्स की होम डायरेक्टरी में रखी डेस्कटॉप नाम की सह निर्देशिका में स्टोर होती है. और डेस्कटॉप की किसी भी एम्प्टी एरिया पर राइट क्लिक करने से कॉन्टेक्स्ट मेनू आपको दिखता है, मिलता है, जो हमें डेस्कटॉप पर फोल्डर, फाइल और एप्लीकेशन लॉन्चर बनाने की परमिशन देता है. और ऊपर बताए गए अनुसार टॉप पैनल में एप्लीकेशन लॉन्चर बनाने की पद्धति ठीक वैसी ही है जैसी कस्टम लॉन्चर बनाने की. और बारी बारी से हम फाइल और फोल्डर को नोटिस फाइल ब्राउज़र से डेस्कटॉप पर या फिर एप्लीकेशन लॉन्चर को एप्लीकेशंस मेनू से या टॉप पैनल को डेस्कटॉप पर ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं. और जब भी हम रिमूवेबल डिवाइस डालते हैं तब डेस्कटॉप पर उससे संबंधित आइकॉन डिस्प्ले होते हैं और हम उसे डबल क्लिकिंग से ओपन कर सकते हैं. जब हम आइकॉन पर राइट क्लिक करते हैं तब हमें एक कॉन्टेक्स्ट मेनू मिलता है जो डिवाइस के प्रकार के अनुसार उसे अनमाउंट और रिमूव मीडिया भी करता है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज कस्टमाइजिंग द अपीयरेंस ऑफ द GNOME डेस्कटॉप. GNOME supports themes. A theme is a harmonious combination or bundle of various display settings. By changing the theme, we may switch from one set of setting to another. Switching the theme and background may result in substantially different look and feel. See figure 7.16. तो यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिए हैं वो 7.16 के है. उसमें क्या है, सम उबंटू GNOME डेस्कटॉप थीम्स. तो उसमें ए में है द एम्बियंस थीम, बी है द क्लियर लुक थीम, थर्ड इज द डस्ट सैंड थीम एंड फोर्थ इज द हाई कॉन्ट्रास्ट इन्वर्स थीम. तो ये सारे पिक्चर्स थे वो किसके थे, डेस्कटॉप थीम के बारे में थे. द हाई कॉन्ट्रास्ट इन्वर्स थीम इज फॉर द विजुअली चैलेंज हैविंग लिमिटेड विजन. The high contrast ratio and light on dark color scheme make it easy to read text. हाई कॉन्ट्रास्ट इन्वर्स थीम विजुअली चैलेंज लिमिटेड विजन के लिए होती है और हाई कॉन्ट्रास्ट और लाइट ऑन डार्क कलर स्कीम टेक्स्ट को पढ़ने में आपको हेल्प करती है. द अपीयरेंस ऑप्शन इन द प्रेफरेंसेस मेनू हैज़ 4 tabs.
First is theme, second background, third font, and fourth is visual effects. The theme tab allows us to choose a theme from a list of installed themes. More themes are available online. The background tab lets us choose the background. We may choose a solid color that fill the whole desktop area or a gradual transition from one color to another, means horizontal gradient or vertical gradient, or a picture as the background. See figure 7.17. तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत पिक्चर दिए गए हैं ग्रेडियंट के बारे में डेस्कटॉप के, और उसमें फर्स्ट है सॉलिड कलर। तो प्रेफरेंस मेनू में कितने टैब होते हैं? 4 होते हैं। फर्स्ट थीम, सेकंड बैकग्राउंड, थर्ड फॉन्ट एंड फोर्थ इज विजुअल इफेक्ट्स। और थीम टैब हमें इंस्टॉल थीम की लिस्ट में से थीम पसंद करने की परमिशन देते हैं, और ऑनलाइन बहुत सारी थीम भी बहुत उपलब्ध होती है। बैकग्राउंड थीम हमें बैकग्राउंड पसंद करने की परमिशन देती है, और हम एक सॉलिड कलर जो पूरे डेस्कटॉप को भर देता है। ओके, तो ये पहला है सॉलिड कलर यहाँ पर ए में। तो सॉलिड कलर में क्या होता है? कोई भी एक ही कलर होता है जो पूरे डेस्कटॉप पर होता है। उसके साइड में है बी, हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट। यहाँ पर 2 कलर मिक्स होते हैं। थर्ड इज वर्टिकल ग्रेडियंट एंड फोर्थ इज पिक्चर। डेस्कटॉप पर हम पिक्चर भी रख सकते हैं। तो ये डेस्कटॉप के अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं। द फॉन्ट टैब्स कैन बी यूज टू सिलेक्ट द डिफॉल्ट फॉन्ट्स। टू मॉडिफाई द फॉन्ट्स, क्लिक ऑन द फॉन्ट टैब एज सीन इन फिगर 7.18। तो ये आपको फिगर है 7.18। उसमें क्या है कि फॉन्ट टैब को डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के चूज़ करने के लिए उपयोग किया जाता है, और फॉन्ट्स को मॉडिफाई करने के लिए आपको ये जो फिगर है 7.80 उसमें दर्शाए गए अनुसार फॉन्ट टैब पर आपको क्लिक करना है। ओके, द विजुअल इफेक्ट्स टैब हैज़ 3 लेवल्स ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स टू चूज फ्रॉम: नन, नॉर्मल एंड extra. The default is none. Setting a higher level enables a wide range of 2D and 3D visual effects depending on the graphical capability of your system. The normal and the extra options may or may not work. If some options cannot work on your system, trying to set that option will result in the message shown in figure 7.19. ओके, तो ये यहाँ पर फिगर है 7.19। ये आपको क्या शो करती है? एरर मैसेज। कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उसका मैसेज आपको यहाँ पर शो होता है। उसके नीचे है द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द इंटरेस्टिंग स्पेशल इफेक्ट्स दैट यू गेट इज एज मैंशन बिलो। फर्स्ट है डेस्कटॉप वॉल। ट्रीट्स द वर्क स्पेस एज वॉल्स दैट द यूज़र कैन स्विच बिटवीन। तो इसमें क्या होता है? डेस्कटॉप पर वॉल, डेस्कटॉप वॉल वर्क स्पेसिस का यूज़र स्विच करते समय दीवारों की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट इज डेस्कटॉप क्यूब एंड रोटेट क्यूब। ट्रीट द वर्क स्पेस एज स्पेसिस ऑफ अ क्यूब दैट द यूज़र कैन रोटेट जस्ट लाइक रोलिंग अ डाई। तो वर्क स्पेस की घन की सतहों की तरह यूज़र्स उसे रोटेट कर सकता है, जिस तरह हम रोलिंग डाई को घुमाते हैं उस तरीके से। Third is magnifier. Allows the user to magnify certain portion of a screen for better readability, especially useful for demonstration before a large audience using the multimedia projector. तो यूज़र को स्क्रीन का अमुक हिस्सा अच्छी तरीके से पढ़ने देखने के लिए मैग्नीफाई हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज इनहेंस जूम डेस्कटॉप। Allows the user to zoom in or out the desktop at the current location of the mouse pointer using the combination super plus mouse scroll wheel। तो यूज़र को इन और आउट डेस्कटॉप को माउस की करंट स्थिति को सुपर प्लस माउस स्क्रॉल व्हील के कॉम्बिनेशन द्वारा जूम इन और आउट करने की परमिशन देता है। नेक्स्ट इज ओपेसिटी। मेक्स विंडो विजिबल सिंपली बाय हॉवरिंग द माउस ओवर मूविंग द माउस पॉइंटर ओवर एनी पोर्शन ऑफ द विंडो। Next is window previews. Display small preview window for an application. When we hover the mouse over its mini representation in the bottom panel, the preview window shows the content of the window. तो जब हम माउस को बॉटम पैनल में रहे हुए मिनी रिप्रेजेंटेशन पर
मूव करते हैं तब एप्लीकेशन के लिए छोटी प्रीवियस विंडो वो डिस्प्ले करते हैं, जो प्रीव्यू विंडो के कंटेंट को दर्शाती है, शो करती है आपको। नेक्स्ट इज ब्लर विंडोज, मेक्स विंडोज ट्रांसलूसेंट टू शो अ लाइट प्रीव्यू ऑफ व्हाट इज बिहाइंड देम। नेक्स्ट इज फेडिंग विंडो, मेक्स विंडो फेड इन फ्रॉम एन इनविजिबल स्टेट become gradually more visible until fully visible, or fade out when they are maximized or minimized respectively। तो ये एक विंडोज जो फेड इन मीन्स अदृश्य अवस्था से ज़्यादा दृश्यमान और पूर्ण दृश्यमान अवस्था, या फिर फेड आउट मीन्स पूर्ण दृश्यमान मीन फ्रॉम अ फुली विजिबल स्टेट से कम दृश्यमान या फिर पूर्ण अदृश्य अवस्था वो बताता है, जब वे क्रमशः मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज भी किए जाते हैं। नेक्स्ट इज मिनिमाइज विंडो, मेक्स विंडो डिक्रीज / इंक्रीज देयर साइज इन एन एनिमेशन व्हेन मिनिमाइजिंग एंड अनमिनिमाइजिंग। वाटर इफेक्ट, डिस्प्ले इफेक्ट एज इफ द स्क्रीन वर अ पॉन्ड फुल ऑफ वाटर एंड द माउस वर अ पेबल थ्रोन इन। तो वाटर इफेक्ट में क्या होता है, स्क्रीन को पानी से भरे तालाब और माउस को उसमें फेंके गए पत्थर की तरह वो आपको शो करता है। नेक्स्ट इज वॉबली विंडोज, मेक्स द विंडोज वॉबल्स मीन्स शेक व्हेन मूव और मैक्सिमाइज्ड। विंडोज़ को वूबल करती है जब उन्हें मूव किया जाता है या फिर मैक्सिमाइज किया जाता है। और नेक्स्ट इज एनिमेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल विंडो इफेक्ट्स, बहुत सारे जो विंडोज़ होते हैं उनकी इफ़ेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपको सारे विंडोज़ के पार्ट्स को अच्छी तरीके से देखना है और सुनना है।